time, let me start with the topic. And everyone, please bring your book. This is the last topic of the spring term, and it's chapter number 7, the internet as a post office. Okay, it is on page number 107. 107. Acha. as as I always tell you that email me this. तो आप लोगों को वैसे email करना आता है, right? You all know how to send the email. So today I will just give you the brief overview about this. So जो भी मुझे इसमें important topic लगेगा मैं आपको भी पूरा practical करके भी दिखाऊंगी, ठीक है? So that you can easily email Because to I your. know how to email a thing to any other people. Yeah, that is good. That's why I'm not bothering so much for this topic. So, but it is in my course, so I have to explain you. Some people don't know how to send the email, so today I will guide them how to create your email, how to add the That is very easy how to to send add email. the attachment on it, how to do the how to write any of the letters, how to do the work with this. Okay, now first of all, start with the chapter. Let me start with the dialogue. Tugal, you remember me friend Rahim in Karachi. It's his birthday today, and I forgot to send a card. Is there any way to can? Is there any way I can send him a card? The Tugal says, of course you can. Does he have an email address? You can send him greeting by email. The Google says, yes he does, but I don't. I have never used email. So the Google says, never fear. When I'm here, I'll help you to open an email account and send the message. आज मैं आपको email account बनाना और उसको message कैसे send करना सिखाऊंगी, ठीक है? In the internet, you can send email and messages, and you can also send so many greeting cards, whatever you want to. We have different websites. They are providing you free sending of emails, ठीक है? ग्रीटिंग कार्ड्स आपको फ्री भेज सकते हैं. दे आर हैविंग सम फ्री सर्विसेज ऑफ ग्रीटिंग कार्ड्स वेयर यू कैन पर्सनलाइज योर कार्ड एंड यू कैन सेंड इट विदाउट एनी कॉस्ट. ओके, आपने सिर्फ अपना और सेंडर का ईमेल एड्रेस लिखना होता है, उनके नाम लिखने होते हैं, और आपने अगर कोई ग्रीटिंग लिखनी है, पर्सनलाइज करना है उसको अपनी मर्जी से, मीन्स आप कोई भी अच्छे कोटेशन या कोई अपनी कोई बात लिखना चाहते हैं उसमें, सो यू कैन इजीली राइट ऑन इट एंड यू कैन सेंड इट. वहां पे मिनी माइक्रो सेकंड्स में आपका ग्रीटिंग कार्ड उस कंसर्न बंदे को पहुंच जाएगा, राइट? So the internet is a worldwide network of millions of computers. It is a medium of communication, research, and exchange of information. You all know about it that the internet provides various services that include the email and the file sharing, online gaming, advertising, marketing, and many more. And email is one of the most widely used features. You all know about it. Okay. Now let's start with the internet terms and addresses. In this chapter, you will learn about the features of the email in more details. But before we proceed further, you must understand certain terms associated with the internet. This is the internet terms which you must have to know about it. So please, everyone, listen to me carefully and let me start. 10 terms associated with the internet. What are the terms? That is Internet Service Provider, ISP. An Internet Service Provider or ISP is a company that offer internet service to the individual and corporations for a fee. ये मुफ्त में नहीं देते आईएसपी. ये मैं भी कंप्यूटर यूज कर रही हूँ इंटरनेट के साथ. सो आई हैव द आईएसपी. आई हैव अ सर्विस विच इज प्रोवाइडेड बाय मी टू आईएसपी. इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनी ने मुझे वो सर्विस प्रोवाइड किए. फॉर एग्जांपल आई एम यूजिंग द स्ट्रॉन्ग फाइबर राइट नाउ. सो आई हैव द कंपनी विच प्रोवाइड मी द इंटरनेट थ्रू एंड उनके साथ वहां से राउटर के थ्रू मुझे मेरे घर में राउटर लगा है जिसके थ्रू मेरे गैजेट्स कनेक्टेड है उनसे. अच्छा, इसके बारे में हम मजीद पढ़ेंगे. नाउ डेज मोस्ट टेलीफोनी कंपनीज आर ऑल्सो आईसी. For example, if we are having, if we talk about the Ufone, if we talk about the PTCL, if we talk about the Mobilink, if we talk about the Zon, they all have their 4G, 3G packages. Okay, so they are also providing us the internet. पहले सिर्फ हमारे पास एक आईएसपी कंपनीज होती थी जैसे पाकिस्तान मल्टीनेट, साइबर नेट, ये सारी सर्विसेज होती थी, कंपनीज होती थी जो हमें इंटरनेट की सर्विसेज प्रोवाइड करती थी. लेकिन अब हमारे पास ऐसी टेलीफोन की कंपनीज भी बहुत सारी हैं जो हमें सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं, like Moblink, Ufone, Zon, PTCL, etc. Okay. Now come on page number 8.
let's learn about modem. That what is modem? The modem is a short of modulator and demodulator. The short form of modulator and demodulator is known as modem. It is a computer peripheral that the users connect their computer to the other computer using wired or wireless telephone connections in order to transmit and receive data. Means if in order to receive and transmit data, we use the modem. Their function is to transmit and receive data to the computer. Now come on to the web page and the web browser. A web page is a document written in the HTML that is called HTML stands for Hypertext Markup Language. ठीक है, वेब पेज एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो कि HTML लैंग्वेज में लिखा हुआ होता है. You can read HTML document on the internet with the help of the program that is called a web browser. वेब ब्राउजर के थ्रू हम वो HTML पेज देखते हैं. A web browser reads HTML document, converts them into the form that the user can read and display them onto the computer screen. For example, when you'll come into the senior classes, your subject will come like HTML लैंग्वेज के नाम से आपका एक सब्जेक्ट आएगा जिसमें आप वेब पेजेस बनाना सीखेंगे. ठीक है, उनकी वहाँ पे उसमें लैंग्वेज होती है जिसमें हम वेब पेजेस बनाते हैं और वो वेब पेजेस कंप्यूटर हम जो देखते हैं वेब पेजेस को वो हमारी उस जो रिटन प्रोग्राम होता है वो हमारा कन्वर्ट कर देते हैं हमारे वेब पेज के मतलब वेब पेज बना देते हैं हमारे उस डॉक्यूमेंट को जो हम टाइप कर रहे होते हैं. जब हम उसको जो भी हम HTML पे लिख रहे होते हैं जब हम उसको नोटपैड पे चेक करते हैं तो वो आपके पास पूरा एक वेब पेज के थ्रू शो कर रहा होता है. इसी तरीके से हमारे जितने भी वेब पेजेस हैं उसके पीछे HTML प्रोग्रामिंग होती है. ठीक है, इसके अलावा a website is a collection of the web pages. जैसे आपकी बुक्स होती है डिफरेंट पेजेस की एक कलेक्शन होके डिफरेंट चैप्टर्स की कलेक्शन जो होती है वो आपकी एक बुक बन जाती है. सेम एज दैट डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स और डिफरेंट वेब पेजेस व्हेन दे कम्स इन अ ग्रुप एक ही टॉपिक के रिलेटेड जितने भी आपकी पूरी की पूरी वेब पेजेस आ जाती है. फॉर एग्जांपल इफ आई टॉक अबाउट योर स्कूल वेब पेज, सो स्कूल वेबसाइट के बारे में बात करेंगे. सो योर स्कूल वेबसाइट हैव डिफरेंट वेब पेजेस रिलेटेड टू योर स्कूल. ठीक है, उस पर डिफरेंट आपके स्कूल के अबाउट स्कूल है, कॉन्टैक्ट्स है, रिजल्ट्स के बारे में है, उसके इवेंट्स के बारे में है, उनकी डिफरेंट चीजों के बारे में कलेक्शन है. सो द कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस आर कॉल्ड websites. Okay, it is also contain link of other places that have the same web pages to web pages on the same websites or the web pages on the other websites. You can also contain fill in forms. अच्छा, आपके पास उसमें fill in form जैसे आप ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म अपने स्कूल के वेबसाइट में भर सकते हैं. You can see the photos, you can see different photos of your events. You can also मिस मैंने प्रोजेक्ट बना के आपको ईमेल कर the दिया. audio files. Who said? मिस Moise. मोइस. Okay, Moise, have you sent me in my email address or in my cell? मिस कहाँ ईमेल भेजा? एड्रेस. Okay, fine. I'll check it. Okay. They can also contain fill information and then you can also see the audio files and videos on it. आपकी जितनी भी videos होती हैं events की वो भी आप अपने वेबसाइट से देख सकते हैं. So we have different sort of objects in the websites. Okay, www, that is called the World Wide Web or the simple the web. This is the World Wide Web collection of publicly accessible web pages stored on computers connected to the internet. It is easy to retrieve information from the web and this has helped to popularize the internet. Means home page जो होता है आपका वेबसाइट के अंदर. अच्छा, जो भी कोई हम वेबसाइट बनाते हैं इसकी स्टार्टिंग में www जरूर लगता है जो कि जिसका मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब और ये एक कलेक्टिवली पब्लिकली एक्सेसिबल होते हैं पूरी दुनिया की तरफ से. इसके थ्रू आपका इसके बगैर आपका कोई भी वेब पेज नहीं चल सकता. राइट, जब भी आप अपना कोई वेब पेज देखते हैं उसमें सबसे वेबसाइट देखते हैं अपनी वेबसाइट के लिए होता है ये. ठीक है, ओके, जब भी हम अपनी कोई वेबसाइट देखते हैं तो उसमें सबसे पहला पेज होता है होम पेज होता है. द होम पेज इज नोन एज द फ्रंट पेज और द इंडेक्स पेज वेयर वी हैव डिफरेंट सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द वेब पेजेस जहाँ पे आपके डिफरेंट वेब पेजेस की इंफॉर्मेशन होती हैं. ओके, उसके लिंक्स दिए हुए होते हैं उस होम पेज पे जिस पे आप क्लिक कर करके उस वेब पेजेस पे जा सकते हैं. Now come on URL. URL known as Uniform Resource Locator. It is a unique address identifying a file on a web. अच्छा, हर वेबसाइट का एक यूनिक URL होता है. जैसे आपके अपने यूनिक नाम होते हैं, अमसाल तो अमसाल है, वो मोइस थोड़ी बन सकता. इसी तरीके से अगर आपका जो वेबसाइट है तो उसका भी एक स्पेसिफिक आइडेंटिकल उसका एक URL होता है जिसके थ्रू हम उस पेज तक पहुंचते हैं. ठीक है, now come on to the internet addresses.
Every file on the internet has a unique address. There are two types of internet addresses. नंबर एड्रेसिंग होती है, लेटर एड्रेसिंग होती है. नंबर एड्रेसिंग क्या होती है? अच्छा, नंबर एड्रेसिंग के लिए क्या होता है आप देख सकते हैं. अच्छा, इंटरनेट प्रोटोकॉल जो कि हम इसको आईपी एड्रेस भी कहते हैं. नंबर एड्रेसेस को हम आईपी एड्रेसेस कहते हैं जो कि 0 से लेके 255 तक के नंबर्स के रेंज के अंदर ही आती है. ठीक है, और ये इस कुछ डॉट्स के थ्रू पीरियोडिकली ये अरेंज हुई हुई होती है. जैसे एग्जांपल में दिया हुआ है 192.12.148.73 एंड 131.58.97.254. ये एक आपके पास यूनिक एड्रेसेस दिए हुए होते हैं यूआरएल के, जिसके थ्रू आपकी वेबसाइट रजिस्टर्ड होती है. ठीक है, तो ये हमारे नंबर एड्रेसेस इस तरीके के होते हैं जो कि एक पीरियोडिकली पीरियड्स में एक सेट हुई हुई होती है डॉट्स के साथ. एक हमारे पास होती है लेटर एड्रेसेस, जैसे oup.com.pk, hotmail.com.pk, gmail.com.pk, डोमेन्स नेम्स होते हैं इसमें हमारे पास. ठीक है, तो ये इस तरीके के हमारे पास दो तरह के होते हैं, लेटर एड्रेसेस होते हैं और नंबर एड्रेसेस होते हैं. The last three letters of the domain name are very important because they provide the information about the kind of the organization. ठीक है, जो हमारे लास्ट थ्री लाइन्स के जो वर्ड होते हैं ना हमारे, वो हम उससे आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारी किस किस्म की ऑर्गेनाइजेशन है, ये किस किस्म का हमारा ये वेबसाइट है. फॉर एग्जाम्पल जब भी .com आता है तो इट्स मीन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है वो. ठीक है, जैसे gmail.com पूरी दुनिया में लोग उसको यूज कर रहे हैं, hotmail.com पूरी दुनिया में यूज कर रहे हैं. ठीक है, जब भी आपके पास edu करके आता है तो वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के वेबसाइट्स होते हैं. ठीक है, gov करके आपका आता है एंड में .gov करके, राइट, तो वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होता है. मिलिट्री के लिए आता है MIL, नेटवर्क एक्सेस प्रोवाइडर के लिए NET, ऑर्गेनाइजेशन के लिए ORG. ऑस्ट्रेलिया की अगर कोई वेबसाइट होती है उसमें AU लगा होता है आखिर में. जैसे आपके पास कनाडा की कोई ऐसी वेबसाइट होगी CA लगा होता है. स्विट्जरलैंड की होगी तो CH लगा होता है. जर्मनी की होगी तो आपके पास DE होता है. पाकिस्तान की होगी तो PK होता है. जापान की होगी तो .GP होगा, GP होगा. यूनाइटेड किंगडम होगा UK एंड यूनाइटेड स्टेट्स होगा तो US. ठीक है, आप इस तरह की जो लास्ट के 2 और 3 वर्ड्स होते हैं इससे देखकर आप अच्छी तरीके से कंट्री कोड्स भी समझ सकते हैं और आप वो पहचान सकते हैं कि आपकी वेबसाइट किससे रिलेटेड है. गॉट इट? नाउ ईमेल सर्विसेज. ईमेल सर्विसेज आर द ईमेल का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मैसेज, इलेक्ट्रॉनिक मेल कहलाती है. ठीक है, इट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रॉनिक मेल दैट कैन बी सेंड टू एनी वन और अनदर पर्सन. यानी एक के साथ लोगों को भी भेज सकते हैं, जिसमें हम टेक्स्ट, पिक्चर्स, साउंड, वीडियोस सब कुछ भेज सकते हैं. ठीक है, एंड बस इसमें एक लिमिटेशंस होती है कि वीडियोस जो भेजते हैं हम वो एक लिमिटेड उसके अंदर उसकी लिमिटेड साइज होता है. उससे अगर आप एक्सीड करते हैं तो फिर आप वो वीडियो वहां नहीं भेज सकते ईमेल के थ्रू. इसके लिए हमारे पास यूट्यूब जैसे चैनल्स बने या फिर हमारे पास इस तरह की सर्विसेज बनी है जो कि वो हमारी वीडियोस जो कि बहुत बड़ी बड़ी हों वो भी भेज सकते हैं. ना एडवांटेजेस ऑफ द ईमेल, कम ऑन पेज नंबर 109, आई एम ऑन दैट. अच्छा, रिमेंबर पेज नंबर 109 में जितने भी आपके ये वर्ड्स दिए हुए ना आपके ऑर्गेनाइजेशन के, ये जो आपको यहाँ दिए हुए कि आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के एड्रेसेस को देखना होगा, पहचानना होगा, ये आपके पेपर में आ सकता है. मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि लुक एट द लास्ट 2 or 3 वर्ड्स एंड जस्ट मैच, और यू कैन ऑल्सो राइट द करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू दैट. आप वहाँ पे लिख सकते हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन के है कौन सी. अगर EDU है तो वो एजुकेशनल की है, GOV है तो वो गवर्नमेंट की है, MIL है तो मिलिट्री की है, UK है तो यूनाइटेड किंगडम. तो ये आपको याद करना होगा, इसको जरूर अपने दिमाग में रखिएगा. नाउ कम ऑन टू द एडवांटेजेस ऑफ ईमेल. What are the advantages of email? The first is speed. Email is much quicker than the normal post. जब भी आप कोई नॉर्मल पोस्ट भेजते हैं तो उसमें 2, 3, 4 दिन लगते हैं या फिर उससे भी ज्यादा लग सकते हैं. बट यू कैन if you send a message from the email, so it is very speedy. You can reach any part of the world in a mini microsecond. ठीक है, सेकंड्स में आपका ईमेल और जो भी आप भेजे होते हैं, ईमेल कार्ड भेजे हो, टेक्स्ट भेजे हो, कोई भी चीज भेजे हो तो वो आपके मिनी माइक्रो सेकंड से पहुंच जाती है ना. कंटेंट. An email message can consist of only few lines of the text or several thousand lines. Unlike the post services, the message is not charged by the weight. आप जितना भी कंटेंट लिख दो उसको वो चला जाता है, वो वेट नहीं इसका काउंट होता. ठीक है, वेट का जो काउंटेज आएगा वो आपकी वीडियोस में आ जाता है. ठीक है, now cost. There is no charge for sending and receiving emails. Messages through the even though the message travel across the world.
पूरी दुनिया में आप कहीं भी ईमेल कर दो, इसके कोई चार्जेस नहीं होते. नाउ रिसीविंग मैसेज, we need not to be at our computer at all the time to receive the message. Any message sent to us is stored safely in our email account. Now listen to me. अगर कोई मैसेज मैंने आपको भेजा है, ठीक है, और आप वो 1 महीने तक आप कहीं बाहर गए हुए घूमने, वेकेशन मना रहे हैं, या इवन मोर देन 1 मंथ, तो आपके पास वो मैसेज सेव रहता है आपके इनबॉक्स में. आप उसको जब चाहे खोलें, आपको मेरा मैसेज मिलेगा ईमेल में. तो इसका एक ये भी एडवांटेज है, ठीक है. और एक और एडवांटेज है जो कि इसमें मेंशन नहीं है, लेकिन मैं बताऊंगी आपको कि जब भी हम किसी को कोई ईमेल भेजते हैं, अगर मैंने वानिया को कोई कार्ड भेजा है, तो मुझे पोस्ट ऑफिस वाले ये एश्योरेंस तो नहीं देते ना कि वानिया को वो कार्ड मिल गया है या नहीं मिला. लेकिन ईमेल एड्रेस के लिए हमारे पास ये फीचर होता है, जब भी हम कोई ईमेल करते हैं, अगर मैंने वानिया को कोई ग्रीटिंग कार्ड भेजा है, तो मेरे पास जब वानिया की ईमेल आईडी में वो ईमेल कार्ड पहुंच जाएगा, तो वो नोटिफिकेशन मेरे पास आ जाती है फौरन कि ईमेल सेंड, यानी वो चली गई है उसके पास. और इवन वी हैव सम advanced features as well, in which whenever Vanya see this email, तो मेरे पास एक और मैसेज आएगा कि वानिया ने ईमेल रिसीव करके देख लिया. ठीक है. सेम एज दैट, एज यू सी इन द व्हाट्सएप, जब भी हम मैसेज करते हैं तो हमारे पास एक डबल चेक लगकर आता है. इसका मतलब होता है आपका मैसेज सेंडर तक पहुंच गया है. और जब वो देख लेता है तो वो डबल चेक जो है वो ब्लू कलर का हो जाता है. इसका मतलब होता है कि उसने रिसीव कर लिया और आपका ईमेल देख लिया, आपका मैसेज देख लिया. ठीक है. नाउ ईमेल एड्रेसेस के बारे में हम बात करते हैं. नाउ वी कम ऑन टू द ईमेल एड्रेसेस. वी हैव द सम यूनिक यूजर्स नेम एंड लॉगिन नेम. ठीक है. इसके कंबाइंड नेम होते हैं, जैसे मेरा था जो कि मैंने भी आपके साथ शेयर भी करा हुआ है, पहले भी कर दिया है और अभी भी कर देती हूँ. That you have my email address indra.hussain2007@gmail.com means you have my specific name and the address name, login name as well. मेरा login name जैसे nida.hussain2007@gmail.com है, तो आप उसके थ्रू मुझे ईमेल कर सकते हैं और आप मेरा लॉगिन नेम भी देख सकते हैं. राइट. कंप्यूटर फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम बाय द @ सिंबल. ठीक है. डोमेन नेम भी आपके पास मेंशन है, जीमेल के पास है. अगर मेरा हॉटमेल पे होता तो आप उस @ के बाद हॉटमेल देख रहे होते. अगर जीमेल पर है तो @gmail.com है या hotmail.com है, जो भी है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो जैसे आमना_शेख @hotmail.com. ठीक है. दानिया_खान @gmail.com. या फिर हमारे पास आउटलुक की आईडीज होती हैं, डिफरेंट कंपनीज की भी होती है. ठीक है. तो ये हमारे एड्रेसेस होते हैं. फीचर्स ऑफ इसमें तो जीमेल की आईडी बनी हुई है बस. ओके. ईमेल्स के फीचर्स के बारे में आ जाते हैं. तो हमारे पास एक ईमेल फोल्डर्स जितने होते हैं ना, उसके बारे में बात करेंगे. पेज नंबर 110 पर आप देख सकते हैं, पिक्चर भी देख सकते हैं, 7.2 पर बनी हुई है. ओके. अच्छा, बिकॉज वी आर हैविंग अ लॉट ऑफ टॉपिक्स इन इट, सो आई विल गो फॉर वेरी फास्ट टू कंप्लीट दिस वर्क. अच्छा, मैं जल्दी जल्दी बताना शुरू करूंगी आपको. जब भी आप अपना कोई ईमेल एड्रेस बनाएंगे, चलिए हम पहले आपको इसको फिजिकली भी करके दिखाते हैं और आपको ओपन भी करके दिखाते हैं. राइट. अच्छा, आप में से कौन है जिसकी ईमेल आईडी अभी बना के दिखाऊं मैं? किसकी नहीं बनी? इसमें तो पहले बनी हुई है. बनी हुई है. चलो मैं किसी की भी बनाती हूँ एक उस पे. ठीक है. लेट्स शेयर द स्क्रीन विथ यू ऑल. ओके, फाइन. हम जीमेल पे ही बनाते हैं. राइट. gmail.com के लिए आप जीमेल अकाउंट के लिए साइन अप करेंगे. हम यहाँ पे लिख दिया हमने लॉग इन गूगल, साइन इन और क्रिएट गूगल अकाउंट. सो आई विल गो फॉर द क्रिएट गूगल अकाउंट. हम बनाते हैं किसकी बनाए? जाहिद, अमसाल, शाह रज़ा, हुमैरा, इकबाल, अनाया, सबकी बनी हुई होगी. यहाँ पे कौन सबसे मासूम है? आमना की बनाते हैं. चलो मेरी बना दे, मेरी ईमेल आईडी अलग से. ये किसने बोला था मुझे अभी? सिनान. ओके, चलो सिनान की बनाते हैं. सिनान. सिनान, योर लास्ट नेम? सिनान बताते जाइए. नेम इज मोहम्मद सिनान एंड लास्ट नेम इज खान. खान. तो हम सिनान खान की बनाएंगे. ठीक है. सिनान और खान. यहाँ पे हम लिखते हैं सिनान, नो, सिनान की स्पेलिंग सिनान डॉट खान डॉट. स्टार्टिंग का नाम क्या है आपका बेटा? मोहम्मद. मोहम्मद. तो हम इसको
मोहम्मद कर देते हैं, ठीक है। कुछ यूनिक बनाना ना, तो सिनान डॉट खान डॉट मोहम्मद कर दिया हमने। यू कैन यूज लेटर्स और नंबर एज वेल, ठीक है, लेकिन हम नंबर ऐड नहीं कर रहे, या नंबर ऐड कर दे, हम कर देते हैं 987, ठीक है, सिनान डॉट खान डॉट मोहम्मद 987, ठीक है। अब हम करेंगे यूज माई करंट ईमेल एड्रेस इंस्टेड ऑफ इट। करंट ईमेल एड्रेस कंफर्म पासवर्ड, और पासवर्ड क्या देना चाहेंगे आप सिनान? आपका पासवर्ड क्या Sinan दें? 123. Sinan 123. सिनान 123, ठीक है। हम यहाँ पे दोबारा कंफर्म करते हैं, सिनान 123, ठीक है। इसके बाद हम इसको नेक्स्ट पर आए, नेक्स्ट पर आए, वेरीफाई योर फोन नंबर। फोन नंबर बताया आपका सिनान, जो आपके हाथ में है अभी, है कोई? चले मैं ऐसा करती हूँ, टीचर 1 मिनट. जल्दी से फोन नंबर बताएं, फिर हम आपके पास एक कोड आएगा जो आपने मुझे फौरन बताना भी होगा, ओके। हरी अप सनान, ओके। 0331 0331 222 222 1070. 1070, ओके सनान, आपके पास एक मैसेज आएगा, आप फटाफट मुझे बताएंगे। वेरिफिकेशन आएगा? कोड, वेरिफिकेशन कोड आया आपके पास, जल्दी से बताएं। आ गया? आपके नंबर पे मैसेज आया होगा, आया सनान? सनान आई एम वेटिंग डियर। 93 93 777 2 777 2, 2. ओके, नाउ इट इज वेरीफाइड। अच्छा, यहाँ पे क्या बोलना है? वील यूज योर नंबर फॉर अकाउंट सिक्योरिटी, इट वॉन्ट बी विजिबल टू अदर्स, ओके, सो यू डोंट हैव टू बी वरीड अबाउट, आपका नंबर इसकी सिक्योरिटी के लिए सेव हो रहा है। अच्छा, रिकवरी मेल एड्रेस बताइए, रिकवरी ईमेल एड्रेस बताइए, अगर आपका ये मिस हो जाए या आपको लगे कि मैं भूल गया उसका पासवर्ड, तो रिकवरी का ईमेल एड्रेस क्या लिखूं मैं आपका, बताया सनान? Yes, teacher. अपना रिकवरी एड्रेस बताइए, दूसरा एक और ईमेल एड्रेस बताइए जिसके थ्रू हम, sinandichamp@gmail.com. ओके, सिनान स्पेलिंग चेक करें, SINAAN सिनान, Yes. डी THE. चैम्प THE. CHAMP, राइट? Yes. सिनान द चैम्प @ gmail.com. ओके gmail.com, राइट। अच्छा, नाउ योर बर्थडे, जल्दी जल्दी बताइए अपनी December ओके, यू आर ऑन दिसंबर, डे 23. 23, ईयर 2008. 2008. ओके, नाउ योर जेंडर इज मेल। व्हाई वी आस्क फॉर दिस इंफॉर्मेशन, हम इसके बारे में कुछ नहीं क्लिक कर रहे, ओके। Get help from a parent. A parent must help Sanan manage his Google account until he turns 13. ठीक है? So enter the account you will use to manage Sanan's account. अपने पेरेंट का अकाउंट बताएं, याद है आपको? OZ. Oh, yes, teacher. oz.immigration@gmail.com. OZI Dot dot immigration immigration @gmail.com. @gmail.com, राइट? ठीक है, Yes. नेक्स्ट, ठीक है, ये पेरेंट्स की कंसर्न स्लिप आ गई आपके पास, ठीक है। अब यहाँ पर आपने डू यू एग्री, तो आई Agree. अंडरस्टैंड और सब पे एग्री कर देना, ठीक है, एग्री कर दिया। ना एंटर योर पासवर्ड, ओजी का पासवर्ड भी चाहिए होगा, ओ गॉड, आपके पेरेंट्स का पासवर्ड, Oh. नो नो नो, इट इज समथिंग वेरी कॉन्फिडेंशियल, सो आई नॉट गो फॉर दैट। एक काम करते हैं हम, टीचर यहाँ वो पे मेरी एक ना मिनट, डेट ऑफ बर्थ हाँ, ज्यादा कर दें। मैं आपकी वो डेट ऑफ डे बर्थ कर देती हूँ 1984, ठीक है। ठीक है, ओके। अब आपका कुछ नहीं मांगेगा वो, नो टीचर अभी भी क्यों भी मांग मांग रहे रही हैं? है तो। अच्छा, यहाँ पे ये होता है कि जो बच्चे छोटे होते हैं ना, तो उनकी के लिए प्रॉब्लम बनता है, राइट? सो आई एम अगेन गोइंग फॉर दिस वन, नो आई एम नॉट गोइंग फॉर द पेरेंट्स हेल्प,
यहाँ पे फंस गए हम सनान, अदरवाइज ये बिल्कुल टीचर सही फिर से चल रहा जाए, था। फिर से करें टीचर, फिर से ओह आई एम गेटिंग दोबारा से लेट माय करें। डियर। चलो ठीक है, जल्दी जल्दी करते हैं। सनान जल्दी से मुझे अपना बताओ, सनान वन सिनान टू 1 2 थ्री 3। सनान 1 2 3। चलो ओके, अगर हमारी मीटिंग एंड हो जाएगी तो मुझे दोबारा ज्वाइन कीजिएगा आप लोग, ताकि हम ये कंप्लीट कर ओके लें। ठीक है, नेक्स्ट पर आ गए। पेरेंट्स का क्यों दे रहे हैं? टीचर, हम 1984 को 1983 करें। नो नो नो, इट डजंट मैटर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेट मी साइन इन अगेन, हम दोबारा क्रिएट करते हैं, छोड़ो। टीचर इस चलो बार सिनान दी चैंप लें। नहीं नहीं, वो तो आपका बना हुआ है ना अकाउंट। ओह अच्छा। मैंने आपका पासवर्ड कर दिया सनान 1234, सनान 1234। अच्छा फोन नंबर बताएंगे, 0331221070। आपके पास है ना ये नंबर पड़ा हुआ अभी? यस टीचर आप है मुझे अभी। जल्दी से इसका कोड बताएंगे, वेरिफिकेशन कोड। ओके जी, जल्दी बताएं, हरी आप। हैव यू रिसीव्ड? नंबर यही है ना बेटा? 8094 8094 57। 57। क्योंकि हम पहले वाली को भी वेरीफाई कर चुके थे, इसकी वजह से हमें प्रॉब्लम आ रही थी। अच्छा, रिकवरी वाली आपने ओजी बताई थी, ओजी डॉट, नहीं 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 नहीं, आपने सनान वाली बताई थी, सनान दी चैन @gmail.com, राइट? ओके, दिसंबर 23 ईयर हमने कर दिया 1987 कर दिया, तो चलो 84 कर देते हैं। जेंडर आ गया आपका मेल। नेक्स्ट, मेल। चले, अब आपको पेरेंट्स की जरूरत नहीं है, आपका अकाउंट बन गया। नाउ जब हमारा अकाउंट बन गया, अब ये पूछ रहा है कि यहाँ से एंटर होना है, तो मैं यूज अनदर अकाउंट करके इनकी आईडी से एंटर हो रही हूँ। सनान, हमने क्या बनाया था, सनान डॉट खान डॉट मोहम्मद, डॉट मोहम्मद। टीचर मोहम्मद मोहम्मद का एम 986। कैपिटल था। ओ यस, ठीक है, डॉट मोहम्मद 786 7, यही था। दोबारा करती हूँ, रुको, मोहम्मद यही था ना नाम? हैव यू नो टेकन? टीचर, मोहम्मद का एम कैपिटल था। नहीं आ रहा फिर उसके लिए, एम यू था। एम ओ ओ ओ था। ये हमारे सनान का एस तो बड़ा नहीं था, यस टीचर, एस बड़ा था। और खान का, खान का के छोटा था। खान इवन खान फाइंड का योर के भी गूगल बड़ा अकाउंट। था। ओके, आपका अकाउंट ही नहीं सर्च कर रहा। टीचर नंबर अलग दिखा रहा है। चलिए एक काम करते हैं, आपका अकाउंट साइन अप करना तो हमने बता दिया किस तरह बनता है, आपका अकाउंट बन गया। यहाँ पर मैं अपने अकाउंट से एंटर होना दिखा रही हूँ उनको, ठीक है। निदा डॉट हुसैन, हाउ वी एंटर इन दिस वे, निदा डॉट हुसैन 2007। जब भी हम कोई अकाउंट बनाते हैं तो हमने आपको दिखा दिया कि सनान का किस तरीके से अकाउंट हमने बनाया था, वो अकाउंट एक्टिव हो गया। सनान, आप मेरी वीडियो पे जाइएगा, उस पर जरा चेक कर लीजिएगा कि हमने जो लिखा है सनान.com करके, सॉरी सनान.खान करके, उसमें हमारे ईमेल में क्या हमने लिखा था, तो आपको मिल जाएगा एड्रेस। फिर आप उसको घर में जरूर ट्राई कीजिएगा साइन इन करने की। मैं यहाँ अपने अकाउंट से साइन इन करके आपको दिखा रही हूँ। आपको बेसिकली मुझे दिखाना ये है कि ये पेज होता कैसा है, राइट। इसके बाद हमने ये एड्रेस लिखा, फिर हमारे पास ऑप्शन आ गया कि आप अपना पासवर्ड मेंशन करें। नाउ आफ्टर एंटरिंग टू द पासवर्ड यू कैन रीच डायरेक्टली टू माय ईमेल, ठीक है। यहाँ पे आप होम पे जाना चाहते हैं, इनबॉक्स पे जाना चाहते हैं, सब कुछ। ये होम पेज है आपका, ये आपसे सिक्योरिटी के बारे में पूछ रहा है कि आप इसकी सिक्योरिटी से एग्री करते हैं, आप अकाउंट की प्राइवेसी में जाना चाहते हैं, जहाँ भी जाना चाहते हैं, राइट। सो आई एम हेयर विद इट। अगर कोई पर्सनलाइज करनी है या कुछ भी करना है, इन्होंने बोला है बेसिकली मैं सनान का एड्रेस के साथ यहाँ पर पहुँच गई हूँ।
तो ये मुझसे इस तरह का अकाउंट दे रहा है। अदरवाइज मैं आपको दोबारा से साइन इन करके दिखाती हूँ। जब भी हम लोग अपना अकाउंट ओपन करते हैं, ये देखिए हम यहाँ पे पहुंच जाएंगे। हमारी अच्छा ये हमारा अकाउंट है। इसमें अगर मुझे अपनी पिक्चर चेंज करनी है तो फिर मैं अपनी पिक्चर के यहाँ से जा सकती हूँ। फॉर योर प्रोफाइल पिक्चर आई विल गो फॉर दिस वन। मिस आपने वो जो प्रोजेक्ट बनाने की वीडियो कहाँ सेंड की है? प्रोजेक्ट बनाने की वीडियो, अच्छा ये देखिए, एक मिनट बेटा मैं ये बता दूं। मैं अपनी पिक्चर चेंज कर रही हूँ, प्रोफाइल पिक्चर राइट दिस, ठीक है। जो मेरे पास पिक्चर लगी हुई थी, मैंने इस तरीके से पिक्चर पे क्लिक करके इसको चेंज कर दिया, ठीक है। अकाउंट स्टोरेज के ऊपर जाते हैं। ये हमारा अकाउंट स्टोरेज है जो कि 87.5 हमारा समझे ये जीबी हमारा अच्छा खासा इस्तेमाल हो चुका है। यहाँ पर आ जाए, एक मिनट आपको ये वाला दिखाऊँ मैं। यू कैन डायरेक्टली गो विद दिस। ये देखिए हमारा मैनेज अकाउंट है। अगर हमें साइन मैनेज योर गूगल अकाउंट, इसके लिए हम यहाँ पर आ रहे हैं। अनदर ऐड अनदर अकाउंट करना है तो यहाँ पर आ जाएगा। ये हमारे पास इसके ऑप्शंस के हुए हैं, ठीक है। फिलहाल मैं आपको यहाँ से साइन आउट करके दोबारा साइन इन टीचर करवा देता हमें हूँ। क्या आपको ईमेल एड्रेस पर भेजनी है? आपकी मर्जी है, इट इज अप टू यू। मैं आपको इनबॉक्स दिखाना चाह रही हूँ अपना, ताकि मैं आपको वहां से, एक मिनट कहाँ चला गया मेरा अकाउंट। मिस लैपटॉप में चार्जिंग खत्म हो गई। मेरी क्लास भी एंड हो रही है बेटा, 3 मिनट्स रह गए। चार्ज पे लगा लो। ओके नाउ I'll explain you how to reach। एक मिनट, मेरा पीसी हैंग हो गया है, 1 मिनट। स्टॉप शेयरिंग कर रही हूँ बिकॉज मेरा पीसी थोड़ा हैंग हो गया है। ओके सो अगेन रीजॉइनिंग मी, यू हैव टू ज्वाइन मी अगेन। मैं दोबारा इसको ऑफ करके ऑन कर रही हूँ, आप लोग मुझे दोबारा ज्वाइन कीजिए, फिर मैं बाकी की चीजें आपको उसमें समझाती हूँ, ठीक है।